Indeed, it is an awesome privilege for all of us this evening to learn God's Word. Today, the speaker of this evening, Father Dr. Daniel Johnson, the Secretary General and Executive Secretary, Synodal Department of Liturgies and Faith, Synodal Department of Priestly Care and Formation. And this evening, it's our privilege once again to learn and motivate ourselves and encourage ourselves from Father Dr. Daniel Johnson. With lovingly, we call him Dr. Achan. And I take this opportunity to humbly invite our dear Father Dr. Daniel Johnson to teach us from God's Word. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। Respected bishops, bishop on the dais, our fathers, young people, it's a privilege for me to stand here आदरणीय हमारे बिशपगण स्टेज में हमारे बिशप और मेरे जवानों, ये सचमुच मेरे लिए एक सौभाग्य है। Now, before I start, some of our volunteers are here and they are going to actually give something out to you. Okay? Some sticky paper, a little paper, color paper they're going to give to you. और हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो आपको चिपकाने वाले कुछ कागज के टुकड़े आपको देंगे। Mic people, when I'm moving around slightly, yeah. So our brothers, our volunteers will actually come now and they will give you colored paper. It's a sticky paper. You can actually stick it on your notebooks. Don't write anything on it. Stick it on your notebooks. और अभी हमारे वॉलंटियर्स आएंगे और आपको रंगीन चिपकने वाला कागज आपको देंगे। आप उस पर अभी कुछ ना लिखें, लेकिन आप अपने नोटबुक में आप उसे चिपका के रख सकते हैं अभी। All right. So once you get that, please make sure you stick it on your notebook. Don't write anything on it now till I tell you. Okay? और जब आपको ये रंगीन कागज का टुकड़ा मिलता है, Quickly. तो आप इस बात को तय करें कि आप उसमें कुछ ना लिखें, लेकिन आप उसको अपनी कॉपी में आप चिपका लीजिए। Now, whoever gets, whoever doesn't get, just make sure that your neighbors are getting it. Our brothers, our sisters, they are all here and they are going to distribute it right now. और हम में से अगर किसी को नहीं मिलता है, तो आसपास के उनके पड़ोसी जो भाई बहन बैठे हैं, आप इस बात को तय कर लें कि सबको वो रंगीन पेपर का टुकड़ा मिल गया है। Now, some of you may have noticed that when our sisters were actually telling about the saint story, और अभी हमने देखा कि हमारी बहनें जो है एक कहानी वो बता रही थी संत की। they were reading it and then unfortunately when they read the names, there was a slight mistake. और जब उन्होंने उस नाम को पढ़ा, तो दुर्भाग्यवश वहाँ पर कुछ गलतियाँ थी। One was Sister Saumya. और एक तो जो बहन जो सौम्या करके, Now the other one was not a brother, it was Sister Prashansa. और जो दूसरी जो थी वो भाई प्रशंसा नहीं, लेकिन बहन प्रशंसा थी। Now you all come from different dioceses, और आप अलग अलग डायसिस से आप आते हैं, but we have another diocese which many of you don't know. और हमारे और कुछ ऐसे डायसिस हैं जिनको आप में से बहुतेरे लोग नहीं जानते हैं। And the diocese is called MK's diocese. MK. MK डायसिस। And now you're thinking, Hare, we've never heard of MK diocese. और हम कहेंगे कि अरे हमने तो कभी भी इस MK डायसिस के विषय में नहीं सुना। MK diocese stands for Missionary Kids Diocese. Missionary Kids. Kids, children. जो उसका नाम है जो बच्चे मिशनरी बच्चे। Correct. So in English it is MK. और इंग्लिश में उसको MK बोला जाता है। Now these children are studying in our school here. और ये जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में यहाँ पर पढ़ते हैं, That both of the ones who actually read or the saint story are our priest children. और जो दो बच्चों ने सामने आकर जो संत की कहानी पढ़ी, वो हमारे याजकों के ही बच्चे हैं। So MKs, are you here? और क्या यहाँ पर मिशनरी बच्चे यहाँ पर हैं? Can you stand up?
क्या आप खड़े हो सकते हैं? Look, आप देखें उन्हें you can see the sisters and see the boys and the girls there. और आप देख सकते हैं, बहनों को देख सकते हैं, यहाँ पर भाइयों को देख सकते हैं। Keep standing. All of them are our children. और ये सब के सब हमारे ही बच्चे हैं। And yeah, they are the ones who are giving all of this. So they call themselves MKs, missionary kids. और ये अपने आप को मिशनरी बच्चे बोलते हैं। So yesterday and today when you all formed little small groups, for workshops, और जब वर्कशॉप के समय जब छोटे छोटे समूहों में जब बांटा जा रहा था, they didn't know which diocese to go to. और तब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उनको कौन से डायसिस में जाना है। So they formed their own diocese. और तब फिर उन्होंने अपने खुद के डायसिस का निर्माण कर लिया। And then they told me, Father, we are MK diocese. और तब उन्होंने मुझको बताया कि फादर ये हमारा MK डायसिस है। Our bishop's children, our father's children, all of them are here. और हमारे जो याजकों के जो बच्चे हैं, शिक्षकों के बच्चे हैं, सब यहाँ पर हैं। Some of them are here who have already graduated and they were MK diocese before. और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहाँ से पढ़ करके उनका दीक्षांत हो गया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर Please आए sit हैं। down. And our family and our home, it's always open to these children. और हमारे बच्चों के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। Now, did you all get the sticky notes, everybody? क्या सबको वो चिपकाने वाला कागज मिल गया? If you didn't get it, raise your hands. यदि आपको नहीं मिला तो आप अपने नहीं मिला. हाथ को उठा If you- सकते हैं। If you did not get it, please raise your hands. यदि आपको नहीं मिला तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। Sisters at the back, some of them did not get it. In the middle also, some of them did not get it. Please और raise your hands. कुछ बहनें जो पीछे हैं उनको नहीं मिला है, और इधर बीच में कुछ बहनें हैं उनको भी नहीं मिला है। All brothers, did you get it? सारे भाइयों को मिल गया? Yes? Okay, good. Now, do not write anything on it. अभी आप उस पर कुछ भी ना लिखें, We will give you time for that. और उसके लिए समय दिया जाएगा आपको। All right, so I will start. और मैं आरंभ करता हूं। Now, they introduced me as Dr. Achan. और मुझे डॉक्टर अच्छन के नाम से बुलाया जाता And the है, reason is I'm a medical doctor and then I became a priest. और उसका कारण है कि मैं सचमुच मैं मैं चिकित्सक हूं मैं। And once when I was working as a doctor, और जब एक बार मैं चिकित्सक के रूप में जब मैं काम कर रहा था, I studied in a medical college in Trivandrum. It's one very large medical college. और त्रिवेंद्रम में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर मैं पढ़ाई करता था। So when we were studying, one day we were called for an emergency. और वहां पर एक दिन एक बहुत ही ज्यादा आपातकाल स्थिति के लिए हम सबको बुलाया गया। All doctors, young doctors, junior doctors, students, everyone called, emergency, emergency, come, we need help. और वहां पर जितने सारे डॉक्टर थे, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, सबको बुलाया गया कि जल्दी आओ, वहां पर एक आपातकालीन स्थिति निर्मित हो गई है। So we went there, everyone, 40, 50 of us went. और हम वहां पर 40 और 50 लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। What happened was, क्या हुआ वहां पर? there was what in our state we call it liquor tragedy, means alcohol tragedy. और हम उसे बोलते हैं अपनी भाषा में, वो है जो शराब की दुर्घटना। Correct. So some people went to drink toddy, alcohol. और कुछ लोग जो थे वो शराब पीने गए हुए थे। Problem was the alcohol they drank was mixed with poisonous things also. और समस्या ये थी कि जो शराब का उन्होंने सेवन किया उसमें कुछ विषाक्त पदार्थ उसमें मिले हुए थे। So some people started having stomach problem, vomiting and everything. और जितने लोगों ने शराब का सेवन किया था उसमें से कई लोगों ने उल्टी करना शुरू कर दिया, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। But then some people, their eyesight started to have problem. और उनमें से कुछ लोगों की जो आंखों की रोशनी थी उसमें भी समस्या आने लगी। In fact, if you have bad alcohol mixed in, your eyesight can be lost forever. और यदि उसमें गलत अगर शराब में अगर कुछ वैसे पदार्थ मिल गए तो आप अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए आप खो सकते हैं। So 10, 20, 30 people were coming in like that. और पूरा लाइन से 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग आ रहे थे। We started treating everyone. और हम लोगों ने उपचार करना शुरू किया। So senior doctors told us, we don't have enough space.
और जो वरिष्ठ जो चिकित्सक थे उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त हमारे पास जगह नहीं है। So if you treat and you find them okay, not serious, send them off, discharge. और यदि आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है तो आप उनको तुरंत उनको वापस भेजते जाइए। 2-3 days people were there. और लगातार 2-3 दिन तक लोगों की रैली लगी हुई थी। Now on the third day, तीसरा दिन doctors were doing rounds. और तीसरे दिन जो डॉक्टर लोग राउंड में थे They are seeing every patient. और हर एक जितने भी मरीज थे उनसे मिल रहे थे। So me and my friend, we were junior doctors. और मैं और मेरा जो मित्र जो है हम लोग भी मरीज से मिलने गए थे। We looked at one old Appachan, means old man. और वहां पर हमने एक बुजुर्ग हमने दादाजी को व्यक्ति को देखा And we said, you look very familiar. और हमने कहा कि अरे आप तो बहुत जाने पहचाने से लगते हैं। Didn't you come on the first day? और हमने उनसे पूछा कि क्या आप पहले दिन आप यहाँ नहीं आए थे? He said, हाँ. उसने कहा हाँ। And then we said, did we not discharge you on the first day itself? और हमने फिर से उनसे पूछा कि क्या पहले ही दिन हमने तुमको अस्पताल से छुट्टी नहीं दी थी? So he said, no. और जगह नहीं। We said, no. I think we discharged you. और हमने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, हमको लगता है कि हमने तो आपको छुट्टी दे दी थी। We took the hospital chart, medical chart. और तब फिर जो अस्पताल का जो चार्ज शीट होता है उसको हमने देखा We asked his name. और हमने उसके नाम को पूछा हाँ, you were discharged. और हमने कहा कि अरे हाँ देखो आपको तो छुट्टी दे दी गई थी। अरे, not one time. First day you came discharged, second day you came discharged. Now it's the third day you are coming. अरे तुम पहले दिन आए, पहले दिन तुमको छुट्टी दे दी गई, दूसरे दिन तुम आए, दूसरे दिन भी तुमको छुट्टी दे दी गई और तीसरे दिन भी आए और तीसरे दिन भी तुमको छुट्टी दे दी गई। We said, what are you doing here? हमने पूछा आप तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? You are not serious. तुम तो उतने गंभीर नहीं हो। Oh, sir, please, don't discharge me. और तब फिर वो हाथ जोड़ करके विनती करने लगा, अरे कृपया मेरे को छुट्टी मत दीजिए, Just one more day. केवल एक दिन और। So we said, अरे, normally people want to get out of the hospital. You want to come into the hospital. Why? और हमने उनसे पूछा कि सामान्यतया लोग जो है अस्पताल से जल्दी छुट्टी चाहते हैं लेकिन तुम नहीं जाना चाहते यहाँ से, ऐसा क्यों? So we threatened him. और तब फिर हमने उनको थोड़ा सा डराया Then he told the truth. और तब फिर उसने हमको सच्चाई बताई। Doctor ji, चिकित्सक साहब, I had bad alcohol. और मैंने विषाक्त जो शराब थी वो मैंने पी ली थी Oh, my stomach was so upset. और मेरा जो पेट जो था पूरा गड़बड़ हो गया था I was vomiting. I didn't know what was happening. और मैं उल्टी कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। So they put me on an ambulance and brought me to the hospital. और उन्होंने मेरे को गाड़ी में भरा, एम्बुलेंस में और अस्पताल ले आए। And when I came here, और जब मैं यहाँ पर आया they put a tube into my nose. और तब उन्होंने मेरे नाक में एक पाइप डाल दी Oh, it was so hard. और वो बहुत ज्यादा मेरे को चोट लगा उससे। And then they put some liquid into the nose, और to the stomach. और उस पाइप के द्वारा जो मेरे नाक में डाली गई थी उन्होंने कुछ तरल पदार्थ को डाला उसमें। Doctor, I don't know what that is, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुझको पता नहीं कि वो क्या डाला गया था, but that is the best alcohol I have ever had in my life. लेकिन उसने कहा कि वो मेरे जीवन का अब तक का सबसे उत्तम वो शराब था जो मैंने कभी पिया था। What he told is correct. What he वो जो told is बोल रहा था वो बिल्कुल वो सही बात थी। You know why? क्यों जानते हैं आप? Bad alcohol mixed is called methyl alcohol. Methyl alcohol. और जो शराब जिसमें विषाक्त पदार्थ जब मिल जाता है तो उसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। Now the antidote to methyl alcohol और जो मिथाइल जो अल्कोहल होता है उसके लिए जो उसकी तोड़ होती है is pure ethyl alcohol. और उसके लिए बिल्कुल शुद्ध उसको शराब की जरूरत पड़ती है। So when he came drinking bad alcohol, और जब वो विषाक्त खराब शराब पी करके जब आया हुआ था we treated by giving him good alcohol. और तब हमने उनको एक अच्छे उत्तम शराब को दे करके उसका उपचार किया। That is why he said, "Arey doctor ji, outside I get bad alcohol, hospital
free, best alcohol I get. और उसने कहा कि डॉक्टर जी बाहर में तो मेरे को महंगे शराब और अच्छा शराब नहीं मिलता, लेकिन अस्पताल में तो अच्छे से अच्छा शराब और वो भी मुफ्त में मिल रहा है। Senior doctor heard us. Senior doctor heard. और जो हमारे वरिष्ठ जो चिकित्सक थे उन्होंने सुना Nicely he gave और उसको फिर बुरी तरह से उसको दिया उसको। and said, what do you think hospital is for? और अस्पताल आखिर किस लिए बनाया गया है? To entertain? क्या केवल मनोरंजन करने के लिए? No, this is to treat patients. नहीं, ये मरीजों के उपचार के लिए है। Get out of this place. इस स्थान से तुम भाग जाओ। Today morning, और उसके बाद सुबह the father who spoke, आज जिस फादर ने हमसे बात किया, what did he tell the church is like? और उन्होंने क्या बताया कि कलीसिया जो है किसके समान है? Hospital. अस्पताल। Do you come to hospital for entertainment? क्या आप अस्पताल में मनोरंजन करने आते हैं? What do you come for? आप किस लिए आते हैं? Healing. चंगाई के लिए। Do you come to church for entertainment? क्या आप कलीसिया में मनोरंजन करने आते हैं? Sometimes we say, "Arre, today the songs were not good." और कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अरे आज तो गीत जो गाया गया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। That uncle doesn't know how to sing. और वो जो अंकल जो गाना गाते हैं उनको तो आता ही नहीं कैसे गाना गाना है। When he sings, even the birds are flying upside down. और जब वो गाना गाते हैं तो चिड़िया भी उल्टा उड़ने लगते हैं। And if that auntie sings once more, rain will surely fall. और अगर वो दोबारा फिर से गाएंगे तो अवश्य रूप से बारिश भी हो जाएगी। Already peacock is flying. और यहाँ पर जो मयूर जो है वो भी उड़ना शुरू कर दिया। Other times you will say, today our priest, I don't know what he ate yesterday. His message was not very good. और फिर आप बोलते हैं कि आज पता नहीं हमारा जो याजक था क्या खा के आया था, आज क्या उसने प्रचार किया। Maybe yesterday he ate chicken biryani. He was doing all this. और हो सकता है कल उसने चिकन बिरयानी खा करके किया होगा। So today's church was boring. तो आज का जो स्वाद जो था बिल्कुल बोरियत था। Question, why did you come to church? क्यों ऐसा होता है? If you want to actually have good songs, if you यदि- want to hear good songs, यदि आप अच्छे गीतों को सुनना चाहते हैं Arey, you don't need to come to church. तो चर्च आने की आवश्यकता नहीं है। Go for a concert. आप कहीं भी आप जा सकते हैं। Go for a music concert. आप जो संगीतज्ञ हैं उनके पास जा सकते हैं। You want to hear good message, यदि आप अच्छा संदेश सुनना चाहते हैं motivational message. और आप बिल्कुल जो प्रोत्साहन से भरे हुए संदेश, YouTube is there. आप चर्च आप छोड़ दीजिए। आप Why do you come to church? चर्च आने की जरूरत क्या है? You come for healing. आप चंगाई के लिए आते हैं। Next question is this. दूसरा सवाल यह है, But Father, how does healing take place in the church? लेकिन फादर आखिर चर्च के अंदर चंगाई होती कैसे है? Answer. उत्तर, To the sacrament of Holy Eucharist. पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान। Now you see a table here. यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है You don't know what this table is, और आपको मालूम नहीं कि ये टेबल क्या है, but we will open it now. और अब हम इसे खोलेंगे। Now this table is not any table. और ये जो टेबल जो है कोई ऐसे प्रकार का टेबल नहीं है। Don't think I'm not going to do any magic. Don't worry about that. और आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैं किसी तरह का कोई जादू करने वाला हूँ। But I kept it in the middle because लेकिन मैंने इसको मध्य में रखा इसलिए this is the center of the church. क्योंकि ये जो कलीसिया का केंद्र है, Just like the center of the universe is the church, जैसे पूरे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र चर्च है, the center of the church is this. तो कलीसिया का जो केंद्र है वो ये है। You cannot move this out of the center. आप इसको मध्य से आप इसे नहीं हटा सकते। Why? क्यों? Because Christ is here. क्योंकि मसीह यहाँ पर होते हैं। Wait. Father, आप थोड़ा देर रुके जरा।
Father, you said Christ is here. क्या मसीह यहाँ पर है फादर? Where? कहाँ? Here. यहाँ। Eh? Christ is not there. मसीह तो वहां पर नहीं दिख रहा है। I can't see Christ. मैं मसीह को नहीं देख सकता। I'll tell you why we cannot see Christ. मैं आपको बताता हूं कि हम क्यों मसीह को नहीं देख सकते हैं। Now I'm going to illustrate something. Okay? और मैं कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। Come. आइए। Okay. These are two of my brothers. Okay? और ये मेरे दो भाई हैं। Come. Or three. अच्छा। You come later. I'll call you. 3 हैं। Arey, look up. आप ऊपर देखें। No, they are not blind. और ये लोग अंधे नहीं हैं। No, don't worry. आप चिंता ना करें। Little stylish, that's all. अरे Bible school brothers can be stylish, no? कोई प्रॉब्लम नहीं है? और ये जो हमारे बाइबल You can स्कूल take के it जो off. बच्चे हैं, अच्छा है ना? You are saying, Father, please give me that sunglasses. और आप बोल रहे होंगे कि फादर वो सनग्लास हमें दे दीजिए। I would like to have that. और मुझको वो चाहिए। Now, we read in Luke chapter 24 a very interesting story. और हम लोगों ने लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में बहुत ही एक रुचिकर हमने कहानी सुनी। Two disciples, वहां पर जो 2 शिष्य थे they are both here. और वो वहां पर चल रहे थे Now they are walking. और वे चल रहे थे They are walking to their village. और वो अपने गांव की ओर जा रहे थे। As they are walking, और जब वो चल रहे थे a third person joins them. और वहां पर एक तीसरा व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाता है। Who is the third person? और वो जो तीसरा व्यक्ति था वो कौन था? Jesus joins them. यीशु मसीह थे। And Jesus is asking, और वो पूछ रहे हैं उनसे, what are you talking about? और वो पूछ रहे हैं कि तुम आखिर किस विषय में बात कर रहे हो? Oh, you look so sad. और उनका वो काफी उदास थे उन लोग। They are smiling. They are not sad. Oh, no, they have to be sad. And why are you sad? तुम क्यों उदास हो? They say, where are you from? Have you not heard? और उन्होंने उससे पूछा, तुम कहां से हो आखिर? क्या तुमने नहीं सुना? They killed our master. और हमारे जो स्वामी हैं They killed him. उनको उन्होंने मार दिया, उनकी हत्या कर दी। We don't know what to do. और अबे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। Then the Bible says, और तब बाइबल कहती है, Jesus started explaining the scriptures, the Old Testament scriptures about Messiah. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल बताती है कि पुराने नियम से जो मसीहा के विषय में भविष्यवाणी करी गई थी वहां से लेकर के उनको समझाते हैं। Because Jesus didn't have New Testament, he was explaining from the Old Testament about the Messiah. क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास नया नियम नहीं था, लेकिन वो पुराने नियम से मसीहा के विषय में वो उनको समझा रहे थे। In our church service, we have 2 parts. और हमारे जो कलीसिया की जो आराधना होती है उसके 2 भाग होते हैं। First part is called the liturgy of the word, और जो पहला जो भाग होता है वो वचन की लिटर्जी कहलाती है, where you listen to God's word जहां पर हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनते हैं being read, और वहां पर पढ़ा जाता है, and then you hear the explanation of that. और तब फिर उसको कैसे विस्तार पूर्वक समझाया जाता है वो सुनते हैं आप। So the first part was happening, और यहाँ पर जो पहला भाग है वो चल रहा है, but the Bible also says लेकिन बाइबल ये भी कहती है their eyes were closed, they could not see, they could not understand. और बाइबल बताती है कि उनकी आंखें बंद थी, वो नहीं समझ पा रहे थे और वो नहीं देख पा रहे थे, So they are walking और वे चलते जा रहे थे and they are about to go to their village, और वे अपने गांव पहुंचने वाले थे। but they ask और तब उन्होंने पूछा, the third person, please come with us. वो जो तीसरा जो व्यक्ति है उससे, They don't know who it is, उसको मालूम ही नहीं उन दोनों को कि वो तीसरा व्यक्ति है कौन, but says, please come with us. लेकिन वो बोलते हैं कि आए। So they come, वे आते हैं and then they are having dinner. और तब वो रात्रि का भोजन करते हैं, And when they are having dinner, और जब वो रात्रि का भोजन कर रहे थे something special happens. और यहाँ पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है। Put your phone down. अपने फोन को आप नीचे कर लें, Listen and see very carefully.
बहुत ही ध्यान पूर्वक आप इधर देखें और सुने। Here is what the Bible says. बाइबल कहती है यहाँ पर, And he took the bread in his holy hands, और उसने अपने पवित्र हाथों में रोटी ली and he blessed it, और उसने उसको आशीषित किया and he broke it, और उसने उसे तोड़ा and then gave to them. और तब उन्होंने उसको दिया। Instantly, तुरंत their eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई And then Jesus vanished. और तब फिर यीशु चले गए। Why? क्यों? Because he is here. क्योंकि वो यहाँ पर हैं। Their eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई। We don't see Jesus here because our eyes. हम अपनी आंखों से यीशु को यहाँ पर नहीं देख पाते। You know, when we were small children, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, sometimes we used to go to this little, melas. और हम लोग जो छोटा छोटा मेला होता है वहां पर हम लोग गए हुए थे। And during these mela times, we used to get these colored glasses. और वो मेला में जो छोटा बाजार हुआ करता था, रंगीन वहां पर चश्मे हमको मिलते थे। Red, blue, green, yellow, all of these colors. और उसमें लाल, नीला, हरा, कई प्रकार के रंगों के। Suppose you have a yellow glass यदि मान लीजिए कि आपने पीला चश्मा लगा रखा है and you put the yellow glass. और अगर आप उस पीले चश्मे को पहन लेते हैं Arey, you have jaundice. और तब आप कहेंगे अरे आपको तो पीलिया हो गया है, Arey, you also have jaundice. अरे तुमको भी पीलिया हो गया है, Arey, you all have jaundice. अरे तुम सबको पीलिया हो गया है, Arey, something terribly wrong in the world. अरे ये तो संसार में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। Then we'll say, Arey, it is wrong with your eyes, not the world. और तब फिर हम कहते हैं अरे बाकी गड़बड़ नहीं है, तुम्हारी आंखों के साथ गलत है। Take the yellow thing off. Okay. उस Everything. पीले चश्मे को निकालो और तब देखो। We look at the divine Eucharist in the wrong way. और हम लोग इस पवित्र प्रभु भोज Thank you. को हम लोग गलत तरीके से हम लोग देखते हैं। Now the question is this. सवाल अब यह है, How should you look at the divine Eucharist? इस पवित्र प्रभु भोज को आपको कैसे देखना चाहिए? We're going to see a video. हम एक वीडियो हम देखेंगे It's a 5-minute video. और ये 5 मिनट का वीडियो होगा। And you can dim the lights on the stage so you can see it better. और जो स्टेज के लाइट हैं अगर उसको बंद कर दें तो अच्छे से दिखाई देगा। And I will be on the side and I'll tell you what it is. और मैं यहाँ पर किनारे में खड़ा रहूंगा और मैं बताऊंगा कि वो क्या है। Now this is a video made for us, all of us. और ये हम सब के लिए You जो can play वीडियो it. जो है वो बनाया गया है। And you see, in this video, there is this one man whom they are focusing on. और ये वीडियो में आप देख सकते हैं एक पुरुष को, एक इंसान, मनुष्य को। And this young man is actually coming to church. और ये जो जवान जो है वो चर्च के अंदर आता है And he is going into the church, and the church looks very empty. और जब वो चर्च के भीतर जाता है तो चर्च उसको पूरा खाली नजर आता है। But look at this. This is, परंतु आप इसे देखें आप, now just watch, I will keep telling what it is. और आप उसे देखें फिर मैं उसको आपको बताते जाऊंगा। Now this young man, you will see him, he is walking into the church. आप देख सकते हैं कि वो जवान व्यक्ति जो है चर्च के भीतर प्रवेश कर रहा है He is coming there after a very long time. Very long time. और वो He's coming there after a long time. और वो काफी लंबे समय के बाद वहां पर आता है He's looking, who all are there? और वहां पर वो देखता है कि यहाँ पर कौन कौन आए हुए हैं And now he is going inside. और अब वो भीतर जाता है As he goes inside, और जब वो भीतर की ओर जाता है he's looking to see how many people are there. वो देखता है कि वहां पर कितने लोग हैं। Not many people. ज्यादा लोग नहीं थे, Few people here and there. केवल कुछ ही लोग यहाँ वहां बैठे हुए हैं। One young woman is walking up. एक जवान महिला चलती जा रही है She has a prayer request. और वहां पर उसने दुआ करी Some older people are there. और वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं And he now will come. She's praying. That's what you see. और वो प्रार्थना कर रही है, हम लोग को ऐसा दिख रहा है। Now he slowly walks in to the church. और वो धीरे से वो चर्च के भीतर प्रवेश करता है। They stand up वे सब खड़े हो गए because the gospel is going to be read. The gospel is being read. क्योंकि वहां पर सुसमाचार का पठन किया जा रहा है। The Gospel of the Lord. Now,
आप देखिए, Watch what happens. आप देखिए क्या होता है। He notices something different. और वो बिल्कुल कुछ अलग सा चीज उसको दिखता है। The priest is preparing to show the communion or do the communion. और पवित्र प्रभु भोज के लिए तैयारी की जा रही है। And so, with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we acclaim, the body and blood of our Lord Jesus Christ. And entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. This is what happens during the Holy Eucharist. पवित्र प्रभु भोज के समय ऐसा ही होता है। He's saying, Father, isn't this just bread and wine? फादर, क्या केवल वो मात्र रोटी और केवल दाखरस है वो? Are you telling me in some way this is the body and the blood? और आप मुझको कैसे आप बोल रहे हैं कि कैसे ये देह है और फिर ये लहू है? No, I am not telling you that. मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। Jesus himself told you. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं आपसे कहा है। In the morning, the Father told us in John chapter 6. और सुबह के समय फादर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में बताया। Jesus says this. यीशु मसीह ने ऐसा कहा, I am the bread which came down for you. और मैं वो रोटी हूँ जो तुम्हारे लिए जो स्वर्ग से उतरी है। But then after that he says, और उसके बाद उसने कहा, this bread is my flesh.
और उसने कहा कि ये जो रोटी जो है वो मेरा मांस है and this wine is my blood. और वो जो दाखरस है वो मेरा लहू है. And then he continues. People are confused. और लोग वहां पर भ्रमित हो गए. And then he continues and says, और वो लगातार प्रभु ने जारी रखा ये कहना, unless you eat of my flesh and drink of my blood, you have no part in me. जब तक तुम मेरे मांस में से ना खाओ और मेरे लहू में से ना पियो तब तक मेरे साथ तुम्हारी कोई सहभागिता नहीं है. Now you're thinking, Father, I thought Jesus was talking symbolically. और आप कहेंगे कि फादर, मैं ऐसा सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह तो सांकेतिक चिन्ह के विषय में बात कर रहे थे. Because Jesus has said, I am the door, I am the way, I am the life, and all of those are symbolic things. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सांकेतिक चिन्हों के रूप में बहुत सारी बातें उसने कही कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं ज्योति हूं. So this is also symbolic, Father. तो ये भी तो सांकेतिक हुआ ना फादर. But I will tell you 5 reasons why it's not symbolic. मैं आपको 5 कारण बताऊंगा कि वो आखिर सांकेतिक क्यों नहीं है. First reason is this. और पहला कारण ये है, When Jesus said, this is my flesh and this is my blood, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है, the ones who listened, the Jews got confused और वहां पर जो यहूदी लोग जो सुन रहे थे वो भ्रमित हो गए and they got angry. और वो क्रोधित भी हो गए. Now, if this was symbolism, यदि वो केवल सांकेतिक चिन्ह के रूप में होता, Jesus could have said, wait, sorry, it's a misunderstanding. Let me state it once more in a nice way. और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा होता कि अरे अरे रुको मुझे माफ करो, ये मेरे को दूसरे तरीके से इसको बताने दो. But Jesus didn't do that. लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया. Instead, he doubles it again and says, unless और you eat उसने of my दोबारा flesh and उसने कहा कि जब तक तुम नहीं खाओगे. blood." Then many disciples left him. और तब बहुत सारे जो उसके चेले थे वो छोड़ करके चले गए. Jesus would have said, oh, wait, don't go. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, रुको कहां जा रहे हो, मत जाओ. I made a mistake. नहीं मैंने गलती कर दी, रुक जाओ. You misunderstood. तुम गलत समझ गए. He didn't say that. ऐसा उसने नहीं कहा. He said what he said. और उसने जैसा कह दिया उसने कह दिया. And you're saying, anybody else, have they told about this? Has anyone else told about this? और क्या और किसी ने इसके विषय में कहा है? Saint Paul in 1 Corinthians chapter 10, संत पौलुस ने जो पहला कुरिन्थी की पत्री अध्याय 10 में उसने कहा, when he talks about the communion, he says, जब वहां पर जब प्रभु भोज के विषय में वो बात कर रहे थे, when you take the cup of blessing, और जब वो धन्यवाद का कटोरा तुम अपने हाथ में लेते हो, are you not having communion with the blood of Jesus? तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में सहभागिता नहीं रखते? Then again in 1 Corinthians chapter 11, और उसके बाद 11 अध्याय में वो पहला कुरिन्थी की पत्री में बोलते हैं, Saint Paul says, संत पौलुस बोलते हैं, some of you, if you take unworthily of this, और तुम में से कुछ लोग उसको अनुचित रीति से लेते हो, you are going to get sick. और तुम बीमार हो जाओगे, You may even die. और यहां तक तुम सो जाओगे. My question सवाल मेरा ये to है, all of us here, और हम सब यहाँ पर हैं, if this was just symbolic, यदि वो मात्र सांकेतिक चिन्ह के रूप में होता, why so serious a problem if you don't take it in the right way? तो अगर उसको सही रीति से, उचित रीति से अगर ग्रहण न किया जाए तो इतनी ज्यादा गंभीर उसमें समस्या और उसका परिणाम क्यों है? It is only a symbol. क्यों? तो मात्र वो तो संकेत है केवल, It's not a symbol. वो संकेत नहीं है. Church always believed that this was the body and the blood of Jesus. कलीसिया ने हमेशा से विश्वास किया है कि वो प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका लहू है. Now और अब you're asking in your mind, और आप यहाँ पर पूछते हैं, in your mind you're asking, आप अपने मन में पूछ रहे होंगे, okay, Father, you are saying it's difficult to understand. और फादर आप ऐसा बोल रहे होंगे और ये समझना कठिन भी है, But tell me, how does it happen? और आप ये कहेंगे चलिए ठीक है, लेकिन ये तो आप बता दीजिए कि आखिर ऐसा होता कैसे है. Okay,
Now let me ask you a question. और यदि आप मुझे प्रश्न पूछने दीजिए, How many of you like paneer? आप में से कितने लोगों को पनीर पसंद है? हाथ उठा हाथ उठाइए। Sisters don't like paneer. क्या बहनों को पनीर पसंद नहीं है? Some of you like paneer. Okay. हाँ, आप में से कुछ लोग को पनीर पसंद है। If the best thing you ever liked is paneer, raise your hand. और अगर सबसे अच्छी चीज अगर कोई आपको लगती है वो पनीर है, तो आप अपने हाथ को उठाएं। Sister ji, please stand. Come. आप सामने आए, आप Come fast. जल्दी से आए। She likes paneer, the best thing. Come fast. आप जल्दी आइए, उनको पनीर सबसे ज्यादा पसंद है। Now, if she knew that I was going to call her, she would not have raised, but it's okay. और यदि उनको ये पता होता कि मैं उनको बुलाने वाला हूं, तो शायद वो अपना हाथ नहीं उठाती। Sister ji, you like paneer? बहन, Come. आपको पनीर पसंद है ना? आप आइए। Now, what is your name? आपका नाम क्या है? Liza. Okay, come this side. आइए इधर। We don't want to stand in front of the altar. So you like paneer? आपको पनीर पसंद है? Father, you can hold the mic to her. Okay. How is paneer made? पनीर को कैसे बनाया जाता है? From what is it made? पनीर किससे बनता है? From milk. From milk. Okay. दूध से। Where does milk come from? वो दूध आखिर कहाँ से आता है? From cow. From cow. Praise God. गाय से दूध मिलती है, प्राप्त होती है। Cow है ना? Okay. गाय है ना? What does the cow eat? और वो गाय क्या खाती है? Grass. घास। Okay. What is the color of the grass? घास का रंग क्या होता है? Green. हरा। What is the color of the cow? जो गाय का जो रंग है वो क्या है? Brown. White, black. White, black, brown. Okay. काले रंग की या सफेद रंग की। Okay. What is the color of milk? दूध का रंग क्या होता है? White. सफेद। You know butter? What is the color of butter? और वो जो Also made from milk, no? और जो दूध से जो मक्खन बनाया जाता है, मक्खन का रंग कैसा होता है? Yellow bead. Yellow. Okay, और yellow. थोड़ा सा पीला सा दिखाई देता है। So, can you explain to me how a brown cow eating green grass, giving white milk, will have yellow butter? No, okay. क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि Thank you. कैसे एक भूरे कलर की जो गाय है, जो हरे रंग का घास खाती है और सफेद दूध देती है? Anyone knows? क्या आप में से किसी को पता है? Hey, पता? how does a brown cow eating green grass give white milk and we make yellow butter out of it? और कैसे एक जो भूरे रंग की जो गाय है वो हरे रंग का घास खाती है, सफेद रंग का दूध देती है और हमको पीले रंग का मक्खन हमको मिलता है? And you are saying, Father, you please explain how this is bread is becoming blood and all of those. You can't even explain the milk which is coming out and you want to explain this? और आप मुझसे कहते हैं कि फादर आप मुझे समझा करके बताएं कि कैसे ये जो रोटी और जो दाखरस है वो यीशु मसीह के मांस और लहू में परिवर्तित होता है, जबकि आप यही नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे आखिर दूध बनता है और कैसे दूध से मक्खन बनता है। Not everything can be explained. हर एक चीजों को नहीं समझाया जा सकता। How do you explain that Jesus is God and man at the same time? आप कैसे इस बात को आप समझाएंगे कि एक ही समय में यीशु मसीह परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है? It is a mystery. यही तो रहस्य है। But all we need to know लेकिन हम सबको एक चीज जानने की जरूरत है। is that Jesus said, "This is my body, this is my blood." जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है। Okay, Father, I understood all of these things. Understood. हाँ फादर, ठीक है, मैं सबको समझ गया, सारी शिक्षाओं को। But how is this going to help me? लेकिन ये मेरी मदद कैसे करेगा? I mean, I come to church, fine. मैं चर्च आता हूँ, अच्छी बात है। You say take the Eucharist, fine. और मैं प्रभु भोज में ग्रहण भी करता हूँ, ठीक है। But you know, I struggle with anger. मैं तो क्रोध के साथ मैं संघर्ष कर रहा हूँ। I struggle with pornography. और जो अश्लील जो वीडियोज होते हैं उससे मैं संघर्ष कर रहा हूँ। I cannot control my tongue.
मैं मेरी जुबान को भी अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता Jealousy is a problem for me. और मेरे अंदर एक जलन की भावना है, वो बड़ी समस्या है। Sometimes I am depressed. और कभी कभी तो मैं बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाता हूँ। How is this going to help me? तो ये कैसे मेरी सहायता कर सकता है? Very good question. बहुत ही अच्छा प्रश्न है। That is where I think we should be very, very understanding. और ये वो जगह है जहां पर हम सबको समझने की जरूरत है। Many years ago, बहुत साल पहले, while I was doing a medical camp somewhere, और जब मैं कहीं पर तो मेडिकल कैंप में कर रहा था, about 16, 17-year-old one girl came और वहां पर लगभग 16 या 17 साल की जवान एक लड़की वहां पर आई and she sat in front of me. और वो मेरे सामने बैठ गई। So I said, what is your problem? और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है? She said, I don't know. Maybe I have cancer. और वो बोलती कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद मुझको कैंसर है। I said, who told you? मैंने उससे पूछा किसने तुमसे कहा? No. I'm very tired. नहीं, मैं बहुत ज्यादा ना, मैं थक जाती हूँ। I don't have energy. मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं रहती है। If I walk from here till there, I pant and I sweat and I have to sit down. अगर मैं केवल यहाँ से लेकर वहां तक अगर चल के जाऊं, मेरे को दर्द होता है, मैं थक जाती हूँ और थक कर बैठ जाती हूँ। And I went to this Tandra Mandra, all these people. और वो जितने भी जो जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले थे, सबके पास मैं गई हूँ। They told me this and that, no use. और उन्होंने मेरे को ये वो करने के लिए कहा, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ उन चीजों So का। I just came to you. Please help me if you can. और इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। यदि आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आप मेरी मदद कर दीजिए। So I checked her. और मैंने उसको जांचा I said, go test your blood and come back. और मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, तुम अपने खून की जांच करवाओ और उसके बाद वापस आओ। Ayo, doctor, please, no, just give me some medicine. और उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, कुछ दवाई दे दीजिए ना। No, I said, go check and come back. और मैंने कहा नहीं तुम जाओ और अपना खून जांच करवा करके आओ। So she comes back with her blood report, और तब वो अपना जो जांच के जो रिपोर्ट थी, पर्ची थी, उसके साथ वो लौट के आती है। and her hemoglobin level is only 5 g%. और वहां पर उसके हीमोग्लोबिन का जो स्तर था केवल मात्र 5% ही था। It should be 10, 11 or 12, something like that. कम से कम उसको 10, 11 या 12% होना चाहिए। I said, Betty, you have no cancer, nothing wrong. मैंने कहा कि तुमको ना तो कैंसर है, कोई भी बीमारी नहीं है तुमको। All your problem is that your blood level is low. केवल सब चीजों का कारण ये है कि तुम्हारे जो खून का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे हो गया है। Take this tablet every day for the next 3 months. और आने वाले 3 महीनों तक इन दवाइयों को, टेबलेट को तुम लेना। Eat these kind of food which you can get और इस तरह के जो भोजन हैं जिनको तुम रोज खाना। and take this deworming medicine. और जो डीवॉर्मिंग की जो दवाई है वो ले लेना। 3 months later, 3 महीने के बाद I see this girl. और मैंने उस लड़की को देखा, She's coming smiling, doctor. वो खुश होकर के आ रही है, डॉक्टर। I'm very happy now. अब तो मैं बहुत ही खुश हूँ, I'm not tired. मैं थक नहीं रही हूँ, I can run. मैं तो दौड़ भी सकती हूँ, I am so happy. मैं बहुत ही खुश हूँ। I said, what is your blood report now? और मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारे जो खून का जो रिपोर्ट है वो क्या है? Doctor, it came up to 8. और उसने बताई कि अभी वो 8 ग्राम तक हो गया। I said, very good, but still more to go. और मैंने उनसे कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन अभी और इसको ऊपर जाना है। This is something similar to what we are going to say now. और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे मिली जुली वो बातें हैं। Sometimes spiritually we are very weak. और कई बार हम लोग भीतर से बहुत ज्यादा हम लोग कमजोर हो जाते हैं आत्मिक रूप से। Father, I cannot resist temptation. और हम बोलते हैं कि फादर, मैं जो परीक्षाओं का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, One time I will resist it, एक बार तो मैं सामना कर सकता हूँ, and then 10 times I will fall into it. और लेकिन 10 बार मैं उस पाप में गिर जाता And हूँ, again I will come back. और मैं फिर से वापस आता हूँ, How you? I am very tired. और मैं तो पूरा थक चुका हूँ। My dear brother and sister, the reason is this is the medicine of eternal life. You are not having it in faith.
मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूं कि यही तो वो अनंत जीवन की वो दवाई है जिसको आप विश्वास के साथ आप स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं Now, करते। I said something, not just having this, but having it with faith. मैंने केवल ये नहीं कहा कि केवल उसको ग्रहण कर लेना, लेकिन मैंने बताया विश्वास के साथ उसे आपको ग्रहण करना होगा। I had a friend in school. I had a friend in school. I had a friend in my school. और मेरा जो एक स्कूल है, School का friend है, एक friend. अच्छा मित्र, सॉरी आई डिड नॉट हियर, No problem. He is a Christian, वो मसीही है, but some other church he goes. वो दूसरे चर्च में हो जाता है। One day he told me, एक दिन उसने मुझसे कहा, hey, last week I went for this communion business. और उसने कहा कि मैं पिछले बार जो वो होली कम्युनियन जो पवित्र प्रभु भोज है उसमें गया हुआ था, And he said, I went. और Like मैं this. इस तरह से गया मैं। And when the father told, open your mouth, ah. और जब फादर ने कहा अपना मुंह खोलो, मैंने आ करके खोल दिया, And then he put something in there. और वो कुछ तो मेरे मुंह में डाल दिए। And then I asked him, crack jack biscuit ano? और मैं वो पूछा, वो क्रैक जैक बिस्किट है क्या वो? I said, huh? You asked that to your priest? क्या आपने अपने याजक से पूछा ऐसा? He said, ah. वो बोले हाँ। You can come to the divine liturgy even like that. और आप दिव्य जो लिटर्जी है, आप इस तरह की सोच के साथ भी आप आ सकते हैं। It's like a switch is there, electricity is there, but the switch is off. और बिल्कुल वो उस बटन के जैसा है, वहां पर बिजली तो लगी हुई है लेकिन वो बंद है बटन। The power of Christ is here. मसीह यीशु की सामर्थ तो यहाँ पर है। The power for healing your spiritual sickness is here. आत्मिक बीमारी की चंगाई की सामर्थ वहां पर उपस्थित है। Electricity is coming, वहां पर जो बिजली है वो आ रही है, but the switch of faith is off. लेकिन विश्वास का जो बटन है वो बंद है। But you turn the switch on और आपको उस बटन को चालू करना होगा and come to Christ और मसीह के पास आइए and say, Lord, I believe. और आप कहें कि प्रभु मेरी मदद करें। Just like I saw in the video, और इसलिए वो हमने वीडियो देखा, that this is you. और ये आप हैं प्रभु, It is your body वो and your blood. आपकी देह और आपका लहू है। And when I receive it, और जब आप इसे ग्रहण करते हैं it is spiritual life within me. और हमारे अंदर जो आत्मिक जो जीवन है उसमें एक नया उन्माद आता है। Because Saint John says, in him was life, and that life was the light of men. क्योंकि यूहन्ना कहता है कि उसमें ज्योति थी और उसमें जीवन था, This is life. और वो जीवन है। You need to take this with faith. विश्वास के साथ आपको इसे ग्रहण करना होगा। We are about to finish here. और अब हम लोग समाप्ति की ओर हैं। Sometimes you say, Father, but you know, when I go to my church, कभी कभी आप ऐसा कहते हैं कि फादर, लेकिन जब मैं अपने चर्च में जाता हूँ, it is like that video, only few people. और वो बिल्कुल उस वीडियो के समान केवल कुछ लोग ही तो होते हैं चर्च में, And I feel alone. और मुझे अकेलापन महसूस होता है। Here I feel so good. यहाँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है So many young people. क्योंकि बहुत सारे जवान लोग हैं यहाँ पर, But when I go to my parish, लेकिन जब मैं मेरी कलीसिया में जाता हूँ, only 5 of us. केवल हम 5 लोग ही होते हैं, And out of that, 3 of them don't like to come. और उसमें से जो 3 लोग हैं उनको ये कप बिल्कुल पसंद भी नहीं है, I feel so lonely. और मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। Dear brother, dear sister, did you watch that video very carefully? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने उस वीडियो को बहुत ही सावधानी के साथ अगर आपने देखा है, When the priest raised that bread, और जब उस याजक ने रोटी को जब ऊपर उठाया, before that he said something. उससे पहले उसने कुछ कहा। He said, let us cry, holy, 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 the Lord God Almighty. और उसने कहा कि आओ हम परमेश्वर को पुकारें, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। Do you know, did you see the angels beside him? और क्या आप लोगों ने देखा उसके दोनों तरफ स्वर्गदूतों का समूह था? That is real angels who are there.
और वहां पर जो मूल वास्तविक स्वर्गदूत थे, but sometimes we can't see लेकिन हम लोग कभी कभी देख नहीं पाते हैं, because they are joining in worship with us. क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो वो हमारे साथ आराधना में शामिल होते हैं। And then there comes a part in the divine liturgy और तब फिर उसके बाद जो डिवाइन लिटर्जी जो कब का होता है उसमें भी वो शामिल होते हैं। when the priest will take the bread and the body and the blood and will say, और जब याजक अपने हाथों में रोटी को लेता है और दाखरस को लेकर के जब वो कहता है, may the mercies of God be with us and on them and in both worlds for और वो now कहता है and कि forever. परमेश्वर की दया हम पर और दोनों युगों में दोनों लोक में सदा सर्वदा होती रहे। What are these two worlds? आखिर ये जो दो लोक क्या है? There is a visible world which I can see, और एक ऐसा संसार जिसको हम देख सकते हैं, but there is another world. Hebrews chapter 11. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में एक दूसरे संसार को हम वहां पर देख सकते हैं। Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, और वहां पर वह ऐसा लिखा है कि हम गवाहों के ऐसे बड़े बादल से हम घिरे हुए हैं, they are worshipping with us. वो हमारे साथ आराधना कर रहे हैं। You are not alone. आप अकेले नहीं हैं, You are not alone in your church. आप अपने चर्च में अकेले नहीं हैं। When you come to divine liturgy, जब आप डिवाइन लिटर्जी में जब आते हैं, the same liturgy is being conducted in so many churches. और बिल्कुल वही लिटर्जी बहुत सारे कलीसियाओं में किया जाता है, And the saints are joining with you in worship. और उस आराधना में वो सारे संत आपके साथ शामिल होते हैं। You are part of a large body of Christ. आप मसीह के वो बड़ी जो देह है, आप उसके सदस्य हैं। Now let me return back to the first story I said. और जो पहली कहानी जो मैंने आपको बताया था वहां पर मैं आपको वापस जाता हूं। You remember the first story I said? आपको याद है वो पहली कहानी कौन सी थी? That man who came to drink? वो व्यक्ति जो शराब पीने आया था। What is church? चर्च क्या है? Why do you come to a hospital? अस्पताल क्यों आते हैं? For healing. So why do you come to church? चर्च क्यों आते हैं? For your spiritual healing. आपकी आत्मिक चंगाई के लिए। And how does that healing happen? और वो चंगाई होती कैसे है? When you take part in the divine liturgy. जब आप डिवाइन लिटर्जी में, दिव्य लिटर्जी में जब आप हिस्सा लेते हैं। This is why we say, go to your church. और इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कलीसिया में जाएं Be part of the divine Eucharist. और पवित्र प्रभु भोज में आप सहभागी हों। Don't miss it for anything in the world. आप संसार में कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से आप उसे न छोड़ें। Sometimes you have missed it. आप में से कई बार आपने छोड़ दिया आपने, And your mother came and asked, why are you not coming today? और आपकी माँ पूछती है कि आज तुम क्यों नहीं आ रहे हो? Suddenly you'll say, मेरा back. Oh, yesterday playing cricket. और आप कहते हैं कि अरे कल क्रिकेट खेल रहा था इसलिए मेरे कमर में दर्द है। After mother goes out, और जैसे माँ बाहर जाती है, then mother comes back again inside. और जब माँ फिर से वापस आती है, Hurry, you told your back. Oh, now again. और जैसे वो बोलती है देख करके कि अरे तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारे कमर में दर्द है, वो बोले हाँ हाँ दर्द हो रहा है। And sisters, I know what you also do. और मैं जानता हूँ कि बहन आप लोग भी क्या करते हैं। Why don't you go to church today? आज तुम चर्च क्यों नहीं गए? Oh. I have 2 daughters at my home and I have a wife and I'm a medical doctor, so I know some of these things. और मेरी 2 बेटियां हैं और मैं एक चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। What can we say? हम क्या बोल सकते हैं अब? Oh. Don't miss this. आप इसे न छोड़ें। Do you want to experience Jesus? क्या आप यीशु को अनुभव करना चाहते हैं? He is here. यहाँ हैं। Do you want to see Jesus? क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? He is here. यहाँ हैं। What did Jesus say? If 2 or 3 of you are gathered in my name, I am in your midst. यीशु मसीह ने क्या कहा? जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। How many disciples were walking in the beginning?
आरंभ में हमने देखा कितने चेले चल रहे थे साथ में, And the third person came. तीसरा व्यक्ति आया वहां पर He was in their midst. और वो उनके बीच में था। When even if you're only 5, हो सकता है कि आप केवल 5 लोग ही होंगे, Jesus is in your midst. यीशु मसीह आपके बीच में होते हैं। And therefore, इसलिए never move this from the middle, the center of your church. कभी भी इसको आप अपने कलीसिया चर्च के मध्य से आप उसे न हटाएं। This is why you go to church. और इसके लिए ही तो है आप चर्च जाते हैं। Now, और अब you have that little paper with you. आपको छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया गया है, Correct? सही है? You know what you are going to write? आपको मालूम है कि आप उसमें क्या लिखने वाले हैं? Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनिएगा। You have to write आपको लिखना है I, मैं, then your name, और तब उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा, belong to, और मैं संबंध रखता हूं, the name of your parish, अपने चर्च का नाम लिखिएगा, Believers Eastern Church, बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, and sign it. और उसके बाद उसमें दस्तखत कर दीजिएगा। So if I write, I will write like this. और अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, I, Daniel Johnson, belong to St. Thomas Believers Eastern Church, and I will sign it. मैं डैनियल जॉनसन सेंट थॉमस बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च से संबंध रखता हूं। Write it. आप लिख लीजिए ऐसा, Your church name. आपके चर्च का नाम लिख लीजिए। मैं, उसके बाद अपना नाम लिखिए, और तब फिर आपके चर्च का नाम लिखिए जो भी है, सेंट थॉमस बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, सेंट पीटर बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, और चाहे तो उस जगह का भी नाम लिख सकते हैं, और अपना दस्तखत आप कर दीजिए वहां पर। Some of you are looking at each other and saying, what is the name of our church? और आप एक दूसरे को देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर कि हमारे चर्च का नाम क्या है। अरे send Paul है ना, Paul नहीं, oh नहीं, अरे यार, please write the name of your church. और आप सही नाम आप लिखें अपने चर्च का। I know some of you are here, your church does not have a name like that. और मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनके चर्च का ऐसा नाम नहीं है। Go ask your diocesan leader and tell them we need to name our church. और जा करके अपने डायसिस के लीडर को आप कहें कि हमारे चर्च के लिए नाम चाहिए, Then sign it. और तब उसमें दस्तखत कर दीजिए। Okay? ठीक है? Now, have you all done it? क्या आप सबने कर लिया? We are going to watch that video once more. एक बार फिर से हम उस वीडियो को देखेंगे। Okay? ठीक है? Now, as you are watching, जब आप उस वीडियो को देखते होंगे, watch very carefully again. एक बार फिर से बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आप उसे देखें। You will see many things which you missed the आप first उसमें time. बहुत सारी चीजों को फिर से देखेंगे जिन चीजों को आप नहीं देख पाए होंगे पिछली बार। Yes, please look at the video. आप कृपया उस वीडियो को देखें। The Kyrie Liaison team can get ready, and our volunteer brothers can come. Please watch the video very carefully. There will be no commentary on it this time. और इस वीडियो को आप देखें ध्यानपूर्वक, और फिर हम अपने आप को समर्पित करेंगे। So that when it does occur, you may believe the word of the Lord. You can dim the lights on the places, please. Jesus told them,
Have sight, your faith has saved you. The Gospel of the Lord. And so, with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we acclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ. Time he was betrayed, and entered willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, And gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. My Lord and my God. Now I want you to do something. और मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। Take that paper in your hand. उस पेपर को आप अपने हाथ में ले लीजिए Sincerely ask God to forgive you. और आप पूरे हृदय की सच्चाई से आप प्रभु से कहें कि प्रभु मुझको क्षमा कर, Because I have taken the Holy Eucharist lightly. और मैंने कई बार प्रभु भोज को बहुत ही हल्के में लिया है So many times I have missed it और बहुत बार ऐसा मैंने किया for silly reasons. For silly reasons. और कुछ छोटे मोटे कारणों के कारण मैंने छोड़ दिया। Take that and hold it in your hand. आप अपने हाथों में उसको ले लीजिए, Close your eyes and ask God forgiveness. अपने हाथों में लेकर प्रभु से आप प्रार्थना करें Quietly. शांत हो जाएं।
Now I want you to do something. और अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। Please open your eyes. अपनी आंखों को खोलें। You see these boards in front of you. आपके सामने ये बोर्ड को आप देख सकते हैं There are some on the sides for the brothers there also. और वहाँ पर साइड में भी भाइयों के लिए बोर्ड लगा हुआ है। Slowly get up and come and stick that paper on the board and draw the sign of the cross and go back and sit down. बहुत ही धीरे से आप अपने स्थान से उठकर सामने आएं। सामने आकर उस कागज के टुकड़े को इस बोर्ड में आप चिपकाएं और क्रूस का चिन्ह बनाकर आप अपने स्थान में जाकर के वापस बैठ जाएं। Slowly, without any rush, any noise, stand up. बहुत ही धीरे से बिना किसी भी तरह की आवाज़ किए, बिना जल्दबाजी के आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं। Stick that paper, उस पेपर को आप ले लें, draw the sign of the cross, क्रूस का चिन्ह आप बनाएं go back and sit down. और उसके बाद आप अपने स्थान में जाकर बैठें।